In the previous class we were describing the single phase transformer, and we also started to describe the three phase transformer. While describing the single phase transformer, we told what is the principle of the single phase transformer, what is the construction of this, what is the how we do the testing on the transformer, how to find out the parameter of the transformer. Later on we described the auto transformer. In the auto transformer, the conclusion was the BA rating of the auto transformer is better than the BA rating of the two winding transformer. For the same copper of the winding. And the second conclusion was the copper required for the same rating in the auto transformer was less in comparison to the two winding transformer. However, when there are merits, there are demerits also. And then we described the three phase transformer. In the three phase transformer, we told there are three windings. Either it is we can use the three phase transformer as one unit, or there can be three windings. There can be three separate single phase transformer. If the three separate single phase transformers, they can also be used as a three phase transformer, or there can be a one unit of the three phase transformer. Then there are again merit and demerit of whether we use the three separate units or a one single unit of a three phase transformer, because the space required in the three phase transformer will be less in comparison to the three separate unit of a single phase transformer, because this is the merit of the single unit of the three phase transformer. On the other hand, if we use the three separate units, then the the transportation will be easy. If there is a fault in one transformer, the two transformer can be used. So there are merit and demerit of three phase transformer, whether we are using the three separate unit or one single unit. Whatever be the case, the principle is the same. There are three windings in the three phase transformer, three windings in a single unit, three windings in the primary side and three windings in the secondary side. If there are three separate units, then also there are three windings in the primary side and three windings in the secondary side. So whatever be the case, either we are using the three separate, either the three separate units or single unit of the three separate windings, then only the construction can be different. Construction is again different, and we also described in the previous class the construction. Construction means there is a core type winding, there is a cell type construction. Core type construction, in the core type construction, the binding is outside. In the cell type construction, the core is outside and binding are inside. So now, there are either of the case, there will be three binding of primary and three binding of secondary. Now question is, if there are three, each binding consists of the two terminal. One is the line, another is the, or you can say phase, one is the return path, another is the ingoing path, another is the return path. So there are two binding. As you know, the single phase, in case of a single phase, always when you take the single phase supply here, then there will be, one will be line and another will be neutral. There are two terminals. So if there are three separate binding, so each binding will have the two terminals. Say there is one binding, another binding, another binding. If it is a phase A, phase B, phase C, then there is a one terminal. There are two terminal. You can have a line neutral or phase neutral, phase neutral, phase neutral. Okay. So if we use the separately single phase load, then if we use the single phase load, then you know there are two terminals. एक phase होता है, एक neutral होता है. But you have seen in the domestic side, you know if it is single phase supply, one line will go and then one neutral will go. But in the houses, if you know if there is a big house, or if the load is more than 5 kilowatt, then normally three phase supply is given. If the three phase supply is given, yes, be attentive now. If the three phase supply is given, then how many number of wires are there in a house? आपने देखा घरों में कितने वायर आते हैं? 3 या 4?
सिंगल फेस में तो पता है देयर आर टू वायर, एक होगा फेस, दूसरा होगा न्यूट्रल. इन केस ऑफ थ्री फेस सप्लाई व्हेन कमिंग टू द हाउस, हाउ मेनी नंबर ऑफ वायर्स आर देयर? 4. सो नाउ होने कितने, इसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? 2 देयर शुड बी 6, बट देयर आर ओनली 4 वायर. In the houses there are 4 wire. In the industries there can be only 3 wires. So now it means, and what do you mean by single phase? Single phase means like this. If it is phase A supply, and you know phase A supply, phase B supply. What is the difference between phase A and phase B? What is the difference between phase A and phase B? Same. Only thing is phase B supply is, this is a phase B supply, okay, and phase C supply, it is a phase C supply. Phase A, phase B, phase C. तो देखिए, if we use the each phase separately, 2 wires will be required for each load. But when we use the 3 phase, that's why we promote, the utility promote that the load should be the 3 phase. उससे क्या बेनिफिट होता है 3 phase होने से? If you see, if it is a balance at a particular instant of time, if you take the sum of this is maximum, this is opposite, it is another direction, sum of them is always 0. IA plus IB plus IC is equal to 0. Okay, in the 3 phase supply, sum of the current is 0. It means phase A में करंट जा रहा है, phase B में करंट जा रहा है, phase C में जा रहा है, but return path, in the return path current will be 0, because sum of them, उनमें phase 120 डिग्री का phase डिफरेंस है, ये 120 this किसी भी स्टेट पे अगर आप सम करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा. हर एक फेस में करंट मिलेगा पर रिटर्न में 0 होगा. That's why there it is beneficial that you use the 3 phase load in comparison to single phase load. In the small cases, geometric cases, there is no option we use the single phase supply. Otherwise, even if you go the floor mill or small atta chakki, then there is a 3 phase supply. So that's it means, how when there is 3 phase supply, then there should be, if it is exactly means number of these terminal may not be 6, then we should have somehow how to make the connection of the 3 phase transformer, so we can take the 3 phase supply either from the 3 wire or 4 wires. 3 तारों से या 4 तारों से हम कैसे 3 phase supply लें? इसके लिए what we do, अब देखिए, that's why there are connection. The connection may be star connection, delta connection. There can be star delta connection, delta star connection, open delta connection, then star zigzag connection और डेल्टा जिगजैग कनेक्शन. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कनेक्शन. हमारी 6 बाइंडिंग हो गई, उनको हम कैसे कनेक्ट करें, इसके बेसिस पे क्या हुआ, डिफरेंट टाइप के कनेक्शंस होते हैं. स्टार कनेक्शन क्या कहता है? से इट इज ए फेस, और वी कैन से इट इज से A1, हियर वी से A1, A2, V2, V1, C2, C1. अब देखिए, इसको कनेक्शन करने के लिए ये अगर इफ इट इज ए फेस, इट इज ए न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल, तो एक तो तरीका ये है, ऑल न्यूट्रल कैन बी कनेक्टेड टू वन पॉइंट. अगर आपने सभी न्यूट्रल ये सभी न्यूट्रल एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया. इफ यू कनेक्ट ऑल न्यूट्रल टू वन पॉइंट एंड लेट इट बी कॉल्ड एज ए न्यूट्रल एन. अब ये बन गया, इसको कह दो एन. और सभी फेस का मतलब A2, V2, C2, इससे आपने कनेक्शन ले लिया. मीन्स इट इज A2, V2 एंड C2. सच टाइप ऑफ कनेक्शन, देखिए, सच टाइप देयर A1, B1, C1, दे आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट. वन पॉइंट मतलब आपका यहां पे आपने कनेक्ट कर दिया A1, B1, C1. लेट A, दिस इज A1, A2, इसका फेस है. टू रिप्रेजेंट इट्स फेसर डायग्राम,
इसका फेसर डायग्राम A1 से A2 के बीच में ये आपका वेक्टर डायग्राम है, फेसर डायग्राम हो गया। अब व्हाट एज आई टोल्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ए और बी के बीच में क्या डिफरेंस है, ए फेस और फेस बी के बीच में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी क्या है, मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड का मतलब आरएमएस वैल्यू इज सेम, इसका आरएमएस लो, इसका आरएमएस लो, इसका आरएमएस वो सेम आएगा, आरएमएस इज सेम, ओनली डिफरेंस इज इन फेस, फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, फेस डिफरेंस में क्या है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना है 120 डिग्री, तो ये A1 इसके 120 डिग्री, ठीक है, तो वी कैन से V1 V2 ओके, और इसके 120 डिग्री C1 C2, ठीक है। इज दिस क्लियर, फेसर डायग्राम सभी का न्यूट्रल आपने एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया, जैसा यहाँ कनेक्ट किया था तो ये फेसर में भी कनेक्ट हो गया, और हमें A2 B2 C2 ये यहाँ पे A2 B2 C2 ये हमारे ये टर्मिनल हो गए, ओके। नाउ ऑन द ये हो गया प्राइमरी साइड पे, सिमिलरली वी कैन इट इट इज ए स्टार स्टार कनेक्शन, मतलब इधर भी स्टार है इधर भी स्टार है, स्टार स्टार कनेक्शन दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ आर स्टार स्टार कनेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका भी यहाँ A2 A1 B2 B1 C2 C1, स्मॉल मीन्स सेकेंडरी साइड, ओके, प्राइमरी साइड में कैपिटल लिख दिया, स्मॉल साइड में सेकेंडरी, एंड इसको कनेक्शन करने के लिए A1 B1 C1 ये आपका न्यूट्रल हो गया, और यहां से आपके 3 टर्मिनल A2 B2 C2. Now if we assume the turns ratio is same 1/1, although turns ratio is not 1/1, if the turns ratio is same, then अगर आपका सपोज करिए यहाँ if the whatever voltage is here, turns ratio same है, इसका मतलब क्या हुआ, if the turns ratio is same इसका मतलब जो वोल्टेज आया वही वोल्टेज यहाँ होगा, अदरवाइज उसके प्रोपोर्शनल। अगर टर्न्स रेशियो सपोज 1:10 है या 10:1 है, तो अगर वो 11 kV है तो कितना रह जाएगा 11 kV डिवाइड बाई 10, ठीक है, तो हमारा वोल्टेज हो गया। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसमें A1 A2 किधर होगा, स्मॉल A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इज द स्मॉल क्लियर, टर्न्स रेशियो के अकॉर्डिंगली, अदरवाइज सेम A2 B2 दोनों सब सेम हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है? नाउ देखिए यहां वोल्टेज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज। देखिए प्लीज लिसन हियर, यहां थोड़ा बी अटेंटिव नाउ, let here this voltage from here to here, this voltage is V phase। अगर ये फेस वोल्टेज है मतलब क्या हुआ, यहाँ वोल्टेज कितना हुआ A1 A2 के बीच में, मैग्नीट्यूड, हाँ भाई आपका क्या नाम, ये बार बार ये जो वोल्टेज, व्हाट इज दिस वोल्टेज, फेस वोल्टेज, जो वोल्टेज A1 A2 के बीच में है इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, फेस वोल्टेज। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, B1 B2 और C1 C2 कितनी होगी, सेम V फेस। तो ये भी V फेस है, ये है आपका V फेस, ये है V फेस, ये है V फेस। लेकिन नाउ ध्यान से समझिए, दिस टर्मिनल N इज नॉट अवेलेबल टू ऑल, N जो सिंगल फेस यूजर्स हैं उन्हें तो N अवेलेबल है, लेकिन इंडस्ट्रीज में N इज नॉट अवेलेबल, दे कैन यूज द A2 एंड B2, दो टर्मिनल लेंगे तो व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस A2 एंड B2, A2 और B2 के बीच में वोल्टेज कितनी होगी, इसमें A2 और B2 के बीच का वोल्टेज, अगर ये फेस है ये फेस है तो देखिए व्हाट विल बी दिस वोल्टेज,
ये इनके बीच का एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये यहां से लेके यहां तक ये कितना है 120 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा। तो अब ये मैग्नीट्यूड क्या, दिस मैग्नीट्यूड दिस इज कॉल्ड A2 and B2, वोल्टेज अक्रॉस A2 and B2 इज कॉल्ड द लाइन वोल्टेज। ये लाइन टू लाइन वोल्टेज, फेस वोल्टेज कहां है अंदर है, तो लाइन टू लाइन वोल्टेज VL यहां से क्या निकलेगा VL लाइन टू लाइन वोल्टेज। देखिए अगर ये बी फेस है, ये फेस है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई, ये तो होता है, मतलब V फेस स्क्वायर प्लस V फेस स्क्वायर प्लस 2V फेस एंड cos ऑफ 60 डिग्री एंड अंडर रूट। ओके, ये क्या हो जाएगा 2 विल टेक आउट, ओके ये क्या हो जाएगा 2V फेस स्क्वायर 2V फेस स्क्वायर प्लस 2V फेस स्क्वायर और cos 60 कितना होता है, cos 60 1/2। तो देखिए ये V फेस बाहर आ गया, ये 2 + 1 3 हो गया, तो इसका क्या आ गया 3V फेस, मतलब क्या हुआ लाइन टू लाइन फेस वोल्टेज इज 3 टाइम्स ऑफ द फेस वोल्टेज, ठीक है, इन केस ऑफ ए स्टार। और अगर ये करंट देखिए दिस करंट और दिस करंट, इसमें कोई फर्क होगा, सपोज दिस इज द IL, दिस इज द IPH, इस करंट में कोई फर्क होगा। लाइन करंट क्या है, जो आपका आउटसाइड है, फेस करंट क्या है, जो उसके फेस में फ्लो हो रही है। तो इन दिस केस IL इज इक्वल टू लाइन करंट इज इक्वल टू फेस करंट, ये VL है, IL इज इक्वल टू I फेस। ये किसके केस में है, स्टार के केस में, ठीक है, दिस इज ए स्टार। अगर डेल्टा, अब मैं दूसरा प्रूव नहीं करूंगा, ये आपने वैसा पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, तो आपका इट इज द स्टार इन केस ऑफ डेल्टा VL इज इक्वल टू V फेस एंड IL इज इक्वल टू √3 ऑफ I फेस। ओके, ये नाउ वी कम अगेन द बेसिक क्वेश्चन। अब नाउ देखिए इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, ये आपको पता लग गया, जितना लाइन वोल्टेज यहां होगा उतना ही लाइन वोल्टेज यहां होगा अगर टर्न्स रेशियो 1 है, जितना फेस वोल्टेज यहां है उतना फेस वोल्टेज यहां होगा अगर टर्न्स रेशियो 1 है। ओके, और इन दोनों में फेस डिफरेंस क्या होगा, फेस मतलब यहां लाइन पे यहां पे और यहां देखेंगे तो फेस में डिफरेंस कितना होगा, ये देखिए जैसे ये A2 B2 के बीच में बना है, ऐसे ये कैपिटल A2 B2 है, ऐसे ये इसके बीच में बनेगा स्मॉल A2 B2 बनेगा। इसका मतलब दोनों में फेज डिफरेंस सेम होगा, तो फेज डिफरेंस सेम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि भाई 0 डिग्री फेज डिफरेंस है, दोनों का जो फेज डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द 0 डिग्री, इट इज कॉल्ड द स्टार 0 डिग्री कनेक्शन। ये 0 डिग्री कनेक्शन, अगर आपको प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड में जो फेस है वो फेस रहेगा, जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड रहेगा, इस इज कॉल्ड द 0 डिग्री कनेक्शन। ओके, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नाउ देयर इज ए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। स्टार स्टार में क्या किया था, सभी न्यूट्रल को एक में कर दिया था, स्टार नाउ इट इज ए डेल्टा अनदर टाइप ऑफ कनेक्शन, हियर अगेन वी राइट इट इज A1 A2 V1 V2 C1 C2, स्मॉल A1 A2 V1 V2 C1 C2। इसमें क्या करते हैं, देखिए टाइप ऑफ कनेक्शन है लो पोटेंशियल, यहां देखिए ये फेस न्यूट्रल और यू कैन से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ऐसे इसमें भी
हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, लो। इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, लो पोटेंशियल ऑफ ए इज कनेक्टेड टू द हाई पोटेंशियल ऑफ दिस, low potential of this is connected to the high potential of this, similarly low potential of this is connected to the high potential of this, ठीक है। और सभी हाई पोटेंशियल से टेकन आउट, ये A2B2C2, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड द डेल्टा कनेक्शन। क्यों डेल्टा कनेक्शन है, ये देखिए, ये फेस ए, लेट A1 और A2, लेट दिस, ये A1 और A2, सपोज ये A1 A2 है, ठीक है। अब जैसे A1 A2, B1 B2 का फेज डिफरेंस क्या होगा A1 A2 के कंपैरिजन में, 120 डिग्री फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। इससे अगर आप कंपेयर ये लें तो सपोज ये 120 डिग्री का फेज डिफरेंस लग रहा है, इज दिस 120 डिग्री फेज डिफरेंस। तो अब यहां देखने की बात है, A1 के साथ B2 कनेक्टेड है, और वहां क्या था, A1 के साथ B1 के साथ B2 कनेक्टेड था, A1 मतलब A1 B1, यहां A1 के साथ B2 है, इसका मतलब ये यहां A1 है तो यहां पे B2 होगा, ठीक है। यहां देखिए A1 B1 है, वहां A1 है तो B2 है, और इसका तो ये हो गया। अब देखिए ये B2 है तो B1 किधर होगा, अब ये हो गया B1 B2, ओके, B1 B2। सो नाउ अब देखिए C1 C2, B1 के साथ C2 कनेक्टेड है, तो यहां B1 के साथ C2 कनेक्टेड है, ठीक है। और C1 कहां कनेक्टेड है, A2 से कनेक्टेड है, C1 इज कनेक्टेड विद द A2, ओके। ये C1 एंड 3 टर्मिनल्स आर टेकन फ्रॉम A2B2C2, A2B2C2, so this is the delta connection. Is this point clear or not? ये आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया। अब ऐसे ही यहां भी डेल्टा है, दिस इज ऑल्सो डेल्टा। डेल्टा मीन्स क्या, लो पोटेंशियल इज कनेक्टेड विद द हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल इज कनेक्टेड विद द हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल इज कनेक्टेड विद द हाई पोटेंशियल, और इस हाई से बाहर ले लिया। तो ये अब इसका मतलब क्या हुआ, सेम A1 A2 के फेस में स्मॉल A1 A2, सेम ऐसे ही आपका जैसे ये है, जैसा ये वैसा ये बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टर्न्स रेशियो, A1 A2, C1 C2, V1 V2। इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस है तो दिस इज आल्सो कॉल्ड, दोनों तरफ स्टार हो या डेल्टा डेल्टा हो, देयर फेज डिफरेंस इज सेम, दोनों तरफ फेज डिफरेंस सेम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड 0 डिग्री कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड द 0 डिग्री कनेक्शन, ओके। नाउ यहां तक किसी को कोई एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? नाउ व्हाट वी विल डू, अब एक वेरी इंपोर्टेंट कनेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब, दैट इज कॉल्ड द ओपन डेल्टा कनेक्शन। देखिए ओपन डेल्टा कनेक्शन हम क्या करने जा रहे हैं, वही है तो डेल्टा कनेक्शन ही। अगर डेल्टा कनेक्शन में क्या किया था, जैसे सपोज करिए ये A1 A2, V1 V2 और C1 C2, ध्यान से देखिए, डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं, लो पोटेंशियल इज कनेक्टेड विद द हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल इज कनेक्टेड विद द हाई पोटेंशियल, और ये देखिए दिस लो इज कनेक्टेड विद द हाई पोटेंशियल, और ये इससे वापस ले लिया A2 V2 और C2। अब हमने क्या किया यहां पे, देखिए ये ट्रांसफार्मर गायब कर दिया, सेम कनेक्शन है, ये ट्रांसफार्मर गायब कर दिया, प्राइम ये है ना, एक फेस ए फेस बी फेस सी का
एक पार्ट नहीं है, मतलब हमारे अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर नहीं है, बट वी हैव द 3 यूनिट ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये, और तीसरा ट्रांसफॉर्मर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या उसमें फॉल्ट आ गया, ठीक है, उसमें फॉल्ट आ गया। अब आप देखिए, जब फॉल्ट आ गया इसके बीच में अगर हमने कौन सा C1 C2 हटा दिया है, C1 C2, ये इसको दोबारा अगर हम बनाएंगे, A1 A2 B1 B2 और ये C1 C2 हटा दिया। नाउ अब आप बताइए, इसके बीच में अगर आप वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे तो कितना वोल्टेज आएगा A2 B2 के बीच में? अगर ध्यान से समझिए बात, A2 B2 के बीच में ये हमने C2 ये हटा दिया, ट्रांसफॉर्मर हटा दिया, तो अब ये इसका फेसर डायग्राम था, इसका ये डेल्टा कनेक्शन है, इसका फेसर डायग्राम है, इसमें से ये हटा दिया, मतलब ये फेस हटा दिया, तो ये हट गया। लेकिन A1 A2 के बीच में मेजर करेंगे तो ये लाइन वोल्टेज आएगा, या लाइन ऑफ फेस इक्वल है, सेम है। और B1 B2 के बीच में मेजर करेंगे तो ये आएगा, और यहां मेजर करेंगे C1 C2 के बीच में तो क्या आएगा? हाँ, इसके बीच में करेंगे तो क्या आएगा? ये जैसे आप यहां ये सोचो, ये हटा दो, ये हटा दिया, ये अब आप ये देखो C2 और A2 के बीच में वोल्ट मीटर लगाए तो क्या आएगा? जितना पहले था वोल्टेज उतना ही रहेगा, क्योंकि देखो इसको सम करेंगे तो वोल्टेज तो उतना ही रहा, वोल्टेज इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ? इवन इफ यू हैव रिमूव द वन ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर हटा भी दिया तो यहां वोल्टेज उतना ही होगा जितना यहां था, ठीक है। इसका मतलब वी कैन गेट ऐसे ही यहां सेकेंडरी साइड में A1 A2 V1 V2 ये हटा दिया है, C1 C2 ये हटा दिया। अब हमने क्या किया था? लो पोटेंशियल इज हाई, लो इज कनेक्टेड टू हाई, ये हटा दिया, तो आपका ये ऐसा A2 B2 और ये C2 ये आपका कनेक्ट हटा दिया, मतलब ये आपका ये ऐसा हटा दिया, तो सेम वोल्टेज मिलेगा। अब उससे इसका मतलब क्या हुआ? वी कैन गेट 3 फेज पावर विद द हेल्प ऑफ 2 ट्रांसफॉर्मर्स। तो हमें 3 फेज पावर मिल जाएगी, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? अगर हमने 3 ट्रांसफॉर्मर से भी पावर मिल रहा है और 2 ट्रांसफॉर्मर से भी उतना ही वोल्टेज मिल रहा है, तो क्या फर्क है दोनों में? नाउ वी विल स्टडी, मतलब हमें वोल्टेज तो सेम मिल जाएगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा वो अगर देखेंगे, देन वी विल सी द पावर एस लेट एस इज द डेल्टा और एस ऑफ ओपन डेल्टा। एस मीन्स पावर इज द, अब देखिए डेल्टा, अगर ये डेल्टा होता तो डेल्टा हो या स्टार हो, 3 फेज पावर कितनी होती है? BI cos 3 BI cos 5 BL IL। 3 फेज पावर का फॉर्मूला ये पता होगा आपको, 3 फेज पावर का √3 BL IL, पावर फैक्टर अगर 1 मान लें सभी में यूनिफॉर्मली दोनों तरफ पावर फैक्टर 1 है, तो √3 BL IL cos 5, ठीक है। ये 3 फेज पावर का फॉर्मूला पता है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 फेज पावर, ओके। और यही यहाँ पे √3 VL IL। अब देखो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? √3 अगर ये डेल्टा है तो यहां ध्यान से देखिए, अगर ये डेल्टा है, प्लीज लिसन अगेन, बी अटेंटिव। वी लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में कितना फर्क है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज? ये सेम नहीं, वो स्टार था, ये देखो इन केस ऑफ डेल्टा BL इज इक्वल टू बी फेस, तो यहाँ लाइन वोल्टेज क्या हो गया?
वी फेस, ठीक है। और या ये लाइन करंट और ये फेस करंट, इनमें क्या फर्क है? √3 √3 ऑफ आई फेस। अच्छा, ओपन डेल्टा में देखिए √3 VL और वी फेस में क्या फर्क है? VL और वी फेस सेम होगा। अब ये बताओ IL कितना होगा इसका, इसमें ओपन कर दिया ना, तो IL कितना होगा? ये तो जो यहाँ करंट होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, इसमें अंडर रूट नहीं आ रहा है ना, तो इसमें IL इजिकल टू आई फेस, तो यहाँ हो गया आई फेस। अब देखिए ये क्या आया, ये √3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, S ओपन इजिकल टू S डेल्टा बाई 1/√3 S डेल्टा बाई 1.732। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.58 S डेल्टा। मतलब क्या हुआ, ओपन डेल्टा, अगर हमें 3 फेज की जगह 2 फेज ट्रांसफॉर्मर है तो हमारा काम चल जाएगा, 3 फेज पावर मिल जाएगी। केवल फर्क क्या पड़ेगा, उसकी 3 फेज सप्लाई मिल जाएगा, लेकिन पावर हमारा 58% वीकेंड हो, 58% पावर पे हम काम चला सकते हैं। 58% पावर पे, जैसे क्या लग रहा है 3 फेज पे 3 और 2/3 66 चलना चाहिए, लेकिन 58 पे करा सकते हैं। एनी क्वेश्चन इन दिस? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ, किसके पास? Anybody who want to ask any question? Yes, please. ये माइक है कैसे? Soham, any question? Yes, please. Okay, thank you very much. So this lecture will be available online to you. जो एब्सेंट नहीं थे ना, जो एब्सेंट थे उन्हें मिल जाएगा। ओके।